कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। दिव्य प्रणाम समस्त को दिव्य संयोग श्रेणी को समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँच स्वागत जनाऊँच आशा करुच्ची समस्त मत ठीक भाव में शुणी पार्टी चलतु प्रार्थना करवा एवं दिव्य संयोग श्रेणी को आम आगे नवा समस्त नमस्कार मुद्रा रही जातु परम पिता परमेश्वर को स्मरण करूँ शक्ति को अपने विश्वास करूँ स्मरण करूँ माता पिता को स्मरण करंतु शिक्ष गुरु दीक्ष गुरु मार्गदर्शक शुभचिंतक पितृपुरुषगण महापुरुषगण ऋषि मंडल समस्त को स्मरण करंतु जल अग्नि वायु पृथ्वी एवं आकाश को स्मरण करंतु विश्व ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मगण को स्मरण करंतु दिव्य शक्ति सहित निज को संयोग कर दिंतु दिव्य संयोग श्रेणी प्रणाम करनियंतु हाथ को सिजंतु आखिरी स्पर्श पूर्वक दुई बाहु मिले यूनिवर्स को ग्रटिच प्रदान करंतु विश्व ब्रह्मांड उद्देश्य कृतज्ञता ज्ञापन करंतु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओपन योर आईज। बहुत बढ़िया सुंदर समस्त को दिव्य प्रणाम। आज आम आलोचना करुचंती आध्यात्मिकता फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकतारे दार्शनिक तत्व उपरे आम श्रेणी को आग को नौचंती आपण समस्त जानिचंती तले आध्यात्मिकतार आज पंच सखारे पांचटी केंद्र पांचटी पॉइंट पर आलोचना कर ओके आपण भल लगे यथाक्रमे आपण जदि पंच सखा को देखिए विशेषकर ओडिया साहित्य जगत में आध्यात्मिकता प्रभाव को जदि आम खोजा ताहेले आम पंच सखा भाव में पाती बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास अनंत दास एवं जशवंत दास एमती पांच सखा वैज्येष्ठ कवि भाव में आम बलराम दास को पाई बेले कनिष्ठ पंच सखार कनिष्ठ कवि भाव में आम शिशु अनंत दास को जो माने कि आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिकता बहुत किछि लेखि देखी जाइछन्ते समग्र सृष्टि भितर आम आध्यात्मिकता पाई जेते बेले ओडिया साहित्यर अभ्युदय घटे ओडिया साहित्यर अभ्युदय मध्य कवितार ही घटी आपण माने समस्त जानिथिबे कि क्रंच दंपतिर मिलन हला बेले को गोटे व्याध जो सर निक्षेप करथिला सेठी ही वाल्मीकि प्रथम श्लोक आरंभ होता कविता तेज से ही आध्यात्मिकतार
ଜାତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର କାବ୍ୟଧାରାର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଇବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ପାଦ ଥିଲେ। କାହ୍ନୁ ପାଦ, ଲୁଇ ପାଦ, ଶବରୀ ପାଦ, ଭୁସୁକୁ ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି 84 ଜଣ ପାଦ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପା 84 ପା ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ କି ପିଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କବିତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ତେବେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ପାଇଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ଜୀବନର କଥା ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାନକ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ଆମେ ଆଲୁ ଅନ୍ଧେର ଭାଷା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ଆଲୁ ଅନ୍ଧେର ଭାଷା, ଆଲୁ ଅନ୍ଧେର ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ଭାଷା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭାଷା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେମିତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସେଇ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ହେତୁ ତାହାକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବା ଆଲୁ ଅନ୍ଧେର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର 84 ସିଦ୍ଧ ପାଦଙ୍କ ଲେଖନୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ବି କବିମାନେ, ଋଷିମାନେ, ସାଧକମାନେ ଲେଖା ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ କବି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ପାଦଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ମାନେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ବାସୀ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ତା ପୂର୍ବରୁ 84 ପାଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ 84 ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ, ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବହିତ ଯୁଗ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଗ ରହିଛି। ସେ ଯୁଗରେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗକୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖାରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା କି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଡିଟୋ କପି ଆଦୌ ନୁହଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଲୌହ ଭୀମଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଗୋଟେ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ପର୍ବର ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଗୋଟେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରିଥିବା ହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦି କବି ବା ପ୍ରଥମ କବି ଭାବରେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜାତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଉ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ, ଏଇ ଭାଗ କିଛି ଇଏ ସବୁ ଆମର ଶରୀର ମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଗୁଣବାଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜାତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଜାତି, ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ସେ ବରଲାଭ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାରଳା ଦାସ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। এই ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପାଇବା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାରେ ଯେ ଏଇ ପିଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୁଚିଛି। ଅତଏବ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୃଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ହେଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହୁଏ। ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର एकदम प्रसिद्ध कृति। जगमोहन रामायण को अन्य भाव आपण दांडे रामायण भाव कह जाए। बलराम दास माँ जेते बड़े धर्म आलोचना चली केबे दिने कौन सी कथा छड़े बोध ये कथा मु कही धर्म आलोचना कला बेले को जेते बड़े तांको सुनिबार सुयोग दियागला सेते बड़े ब्राह्मण मानकर प्रादुर्भाव इति थिला जे कौनसी अन्य जातिर लोक माने महिला माने शिशु माने धर्म चर्चा शुणी पारे ना एवं भल लगे शुणा कौनसी एक कोण बलराम दासंकर माँ शुणुली से प्रवचन सभारे जिते जानिले शुणुंट रामायण धक्का मारिक तड़ी दि जाता कहुए इतिहास को एवं धक्का मारिक तड़ी देता हेतु बलराम दास भी बहुत बड़ भक्त थे। जो उदाहरण आप नियंती बालुका प्रांतर एक रथ तैयारी थे जगन्नाथ सेठी चलीगले रथ गड़िला ना गली राजा को स्वप्नादेश है राजा गले बलराम दास को से बालुका प्रांतर उठे आनिले रथ जिते आणिकी बसैले स्पर्श करें रथ गड़ी एक कथा भी आपण मैंने अनेक ओडिया भजन रे एक कथा मत आपण मैंने जानी। तो बलराम दास को माँ जिते अत्याचारी थी कि पड़े आसिले कहले पुओ तू गोटे रामायण लिखतु दिने मांकर अमृत वाणी बलराम दास को एक प्रसिद्ध कवि रूपांतर बुझीपार ये फिलोसफी ये दर्शन गोटे दर्शन आपण को आध्यात्मिकतार चरम सीमा पर्यंत पहुंचे पारे। बलराम दास माँ कथा अभिभूत रामायण लिखा आरंभ कले जहाँ जगमोहन रामायण भाव परिचित है लक्ष्मी पुराण है से तत्कालीन समाजर जो अत्याचार अन्याय को स्वरोत्तोलन करने निमित्त से लक्ष्मी पुराण स्वयं जगन्नाथ बलभद्र को से आक्रमण कले स्वयं बलराम जगन्नाथ प्रभु को एक कथा भी चर्चा कर बेसी मैं लंबे संक्षिप्त केवल कही एवं नारी मान स्थान जेहेतु बहुत तले नारी शिक्षा से नाला नारी शिक्षार प्रसार नाला नारी मैंने पढ़ी पारे ना परवर्ती समय भी फकीर मोहन रेवती गलत आसला अनेक नारी उपर आसला श्री बलराम दास से मुख्य विषय गोटे नारी मान स्थान पुरुष सहित समान लक्ष्मी को से भाव वर्णना कले एवं जाति भेद श्रिया चांडली घर को गला लक्ष्मी को बासंद कले कलापर लक्ष्मी श्रीमंदिर को पुरई देले नहीं फलत स्वयं जगन्नाथ बलभद्र को खाद्यर अभाव है खाइबा पाइले भिकारी बुली 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 जाइए पुणी लक्ष्मी पाखे पहुँचले आउ लास्ट को प्रमाण कले कि लक्ष्मी हाड़ी घरे थे पाण घरे थे स्नान करतु न करतु जहाँ करतु शौच दरकार नहीं आसिक श्रीमंदिर प्रवेश कर जाति भेद को दूरीकरण करने एवं नारी मान स्थान को उच्चतम सोपान को आनबार दुईटी बहुत प्रमुख लक्ष्य को लेकिन बलराम दास
ଲେଖା ରଚନା କରି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅତି ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ଧରିକି ପୂଜା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାତିର କୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆଟା କି ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆମେ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେତେ କଞ୍ଚା ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପାକଳତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି। ସେଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆଶା କରିବି ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ, ହୃଦୟକୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ତାହା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାର୍ଶନିକତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଆମେ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼କୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆମ ଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏଇ ରୂପ ଦେଇକି ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ, କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଠେଇଲେ, କାହିଁକି ଏଇ ବାପା ମାଙ୍କ କୂଳରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଏଇ ମାଟିରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି, କାହିଁକି? ଏଇସବୁ କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକିର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। କିଏ ମୁଁ କିଏ? କୋଚେସ୍କ ମିଶ୍ର, ଏଇ ଶରୀର, ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ। ମୋର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି, ଆଜି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହଉଛି, ମୋର ହାତ, ମୋ ହାତ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଆଖି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମୋର ସେ ମୋରଟି କିଏ? ସେ ମୋରଟି ଯିଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା କ୍ଲିୟର। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ এই ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଧର୍ମ ଓ ନୀତି। ଧର୍ମ କହିଲେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ତାହା ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। ପାଣିର ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଆଡ଼କୁ ବହିବା। ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଶିଖେଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ବୃକ୍ଷର ଧର୍ମ ଫଳ ଦେବା, ଫୁଲ ଦେବା, ଛାଇ ଦେବା, ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ମାନବର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମାନବର ଧର୍ମ ମାନବକୁ, ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନବ ଧର୍ମ। ମାନବ ଧର୍ମ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚସଖାର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚସଖା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଏବେ ଯିବା ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଏସବୁ ନୁହଁ, କର୍ମରେ ହିଁ ମଣିଷ ଜିଉଛି। ଆପଣ କର୍ମ କ'ଣ? ସତ୍କର୍ମ। ସେଇ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବ। ଆପଣ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଜାଗତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ନେଇଯିବ ଏକ ନୂତନ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ସେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଭାବିବା, ଯେତିକି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ଦିବ୍ୟାଲୌକର ଧାରା ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ନୀରବତାରେ ଆମେ ଏକଲା ଥିବା ସମୟରେ ଏ ସଂସାରର ମହାଜାଗତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ଆପଣ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ସବୁ। ଓକେ, ଏହା ଧର୍ମ ନୀତିରେ ଆମେ ଯିବା ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା
मनुष्य को सत्य नीति न्याय पथरे चलने शिखाए एवं यह मनीष को सुंदर करने सहित समन्वित करिଥାଏ। तृतीय गुण भाव जदि आम नवा आध्यात्मिकतार दर्शन रे ताहेला करुणा और प्रेम, कंपैशन एंड लव। करुणा एवं प्रेम, सत्य आध्यात्मिकता माने समस्त प्राणी प्रति करुणा एवं प्रेम रखिबा। यह मानवतार उच्चतम मूल्य को प्रकाश करिଥାଏ, वैल्यू देइଥାଏ। वैल्यूबेस लाइफ को माने जो माने जो मानक हृदय करुणा थाए एवं प्रेम थाए। करुणा एवं प्रेम होची दुईटी दिव्य गुण। ये दुईटी दिव्य गुण आमको आध्यात्मिकतार शीर्षतम स्थान को नहीं जाए। नंबर 4 हला मनर नियंत्रण। सबरी मूलरे मन, सबरी मूलरे मन, मन मूलरे जगत। जानते तो मन मूलरे ही यही जगत। मनर नियंत्रण, मन को आम नियंत्रण करुचंती केमिति? ध्यान करुचंती, योगा करुचंती, प्राणायाम करुचंती, आत्मचिंतन करुचंती, विजुअलाइजेशन करुचंती, निज विषय जानुचंती, मन को कंट्रोल करुचंती। मु आपण मन को कहिछि एई संसार वृक्षलता आरंभ कर जितेक प्राणी अछंती सब प्राणी को भगवान आग सृष्टि करदेले। सब जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश सृष्टि ही गला, गछ वृक्ष सृष्टि ही गले, कीट पतंग सृष्टि हेले, चढ़ई मान ही गले, तापरे ही गले आपणकर पशु पक्षी माने समस्त सृष्टि ही गले, सर्वशेष मनीष सृष्टि है। आप इतिहास को देखिए, नियंत्रलाल क्रोब्यानन मिति क्षति आपणकर मानवर क्रम विकास पढ़े आप जापर आम मांकड़ मांकड़ लैंज छिंडी कर धीरे धीरे आम मनीष रूप आस राइट। जो मनीष रूप आम आसिले भगवान आमको यही संसार आम पूर्व सृष्टि होता समस्त जो सृष्टि सर्जना जितकी प्राणी अच्छा प्राणी मान समस्त गुण गुड़ी को मनुष्य भितर रखी अर्थात पृथ्वीर समस्त प्राणी वृक्ष लता कीट पतंग पशु पक्षी समेत समस्त मानकर गुण आम ताको परिप्रकाश करके जीवन में बड़ बड़ सफलता हासिल करूँ, ताको प्रकाश करके आम दिव्य शक्ति बेले बेले आम बाघ भली हिंसर भी हमें, बेले बेले मांकड़ भली चंचल मन क्लास पुणी थे आपण मान क्लास रे पुनर्बार स्मरण कर दूची कि आम के शक्तिशाली के पावरफुल भगवान आम भितर ही अच्छा शक्ति आकार इनविजिबल अर्गान भाव अच्छा जी आमको प्रेरित करुँच प्रति मुहूर्त आम खोजा दरकार पाइबा दरकार अन्वेषण करने दरकार ताहला आत्मज्ञान ताहला आध्यात्मिकतार चरम स्थान। जो माने जो साधक माने जो ऋषि माने जो मनीष माने आपण केते पूजा पाठ बसिके करूचंते मैटर नुह। आपण किसी पाठ साठ पढ़ी थांतु न पढ़ी थांतु मैटर नुह। कौन सर्टिफिकेट प्राप्त ज्ञान एवं सर्टिफिकेट पाई नथिबा कौन एक पाठशाठ पढ़ी नथिबा गोटे लोकर ज्ञान ज्ञान सदा सर्वदा समान। ज्ञान को जो शीर्षतम गोटे सोपान चिंता करेंगे भावना आपण भावना ने आसब भावना भी केते ऊपर स्तर को जीव आप भावना भी केते तेरे यही जो कथा जो माने मन को नियंत्रण करि पारंती चंचल मन से माने ही जड़े भल आध्यात्मवादी मन को जो मैंने नियंत्रण कर मन तो कितने प्रकार इच्छा कर कितने प्रकार इच्छा कर घरे नाई न धन राजार झील को मन बोली
ଶୁଣିଛନ୍ତି ଘରେ ଧନ ନାହିଁ ରାଜାର ଝିଅକୁ ମନ କରୁଛି। ବାହା ଏ ତ ମନ ବା ଇଚ୍ଛା କରିବ ବାହା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଉଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ମନ। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ। ସେମାନେ କୋଉ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ଆଦୌ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ଆଦୌ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମଟା କରିଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେଇଯିବ ସାଧକ ହେଇଯିବ ତାହା ତ କଞ୍ଚା ମାନସିକତା ମୁଁ କହିବି। ପାକଳ ମାନସିକତା ହେଲା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କଣ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକତ୍ୱର ଧାରଣା। ଏକତ୍ୱର ଧାରଣା, ୟୁନିଟି ଅଫ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏକତ୍ୱର ଧାରଣା। आध्यात्मिक दार्शनिकता कहे जे समस्त जीव एवं प्रकृति एक दिव्य सत्तार अंश अटंती। एठी जहाँ देखुचंती सचराचर विश्व प्रकृति जीव समस्त दिव्य सत्तांकर दिव्य शक्तिंकर एक अंश विशेष में समस्त एवं यही अंश विशेष होइथिबा हेतु परस्परंक सहित प्रकृति जीव वृक्ष लता कीट पतंग जल अग्नि आलोक मोटामोटी भाव प्रत्येक मनीष अपर मनीष प्रति अंत जगतरी संयुगित संश्लिष्ट। जेबे आमे अन्य मानक सहित कौनसी न कौनसी संपर्क रे बंधा तेबे एते ईर्षा एते क्रोध एते परस्पर कातरता एते अहंकार एते युद्ध काहींकी व्हाई एते युद्ध काहींकी अंतर भीतर को पचारंतु ताहा ही अध्यात्म। एई एकत्वर धारणा यूनिटी ऑफ एक्जिस्टेंस तो बहुत बड़ा कथा। या को आम भारतीय पौराणिक आध्यात्मिक साहित्य जगत रे कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम, समग्र वसुधा अमर कुटुंब भली। यही मानसिकता आध्यात्मिकतार दार्शनिक दिग को सूचई थाए। एबे आमे जीवा पंच सखा मानक विषय रे आलोचना करी एई पॉइंट मानक आमे आलोचना करी। मन मंदिरे दीप जल, मन मंदिरे दीप जला अंधकार हेब दूर, आत्मार शांति मिली जीव, सत्य हेब आपणक सुंदर, सत्य पथ हेब सुंदर। केतेबेले जेतेबेले मन रूपक मंदिर रे आपण दीप जाली आरंभ करिवे, जानते तो खाली बाहर दीप दान करंतु को मंदिर को ठाकुर को जाई मन भीतर थिबा अंधकार को दीप जाली की दूर करंती कि नहीं। पाप पंकेड़ असहायता, असहायता आम भीतर अच्छी बहुत बड़ा दुर्बलता। आम इति शक्तिमान नहीं शक्तिशाली की असहायता कोथि ताकू आमर दीप द्वारा दीप जाली की ताकू आम दूर करने दरकार अच्छी। जीवन एक ध्यान यात्रा, मन हेउची तार पथ। जी निजको जानिला दिने से पाईगला परम शांति। निजको जी जानी दिए से परम सत्य पथ तांको मिलता है। तेणु जीवन यात्रा एक ध्यान यात्रा, एक मेडिटेशन रूट रास्ता। हमें से रास्ता रे जाउछन। जीवन निज भीतर को खोजन, निज को खोजंतु जहाँ पंच सखा कहिसंत मो लेबी उदाहरण रे किछि आवृत्ति करूछि पद पंक्ति तापरे मो आपनको। नीरवतारे लुचिछि शक्ति, ध्यान रे लुचिछि ज्ञान। निज आत्मा को जी जाने ताही परम ध्यान। प्रत्येक पदरे आपण आत्मा कथा जानिबे, निज कथा बाहर खोजंतु नहीं। आध्यात्मिकता दर्शन बाहर मिलिब नहीं। बाहर जो दर्शन शुणुचंती पढ़ुचंती आलोचना रे भाग नौचंती देखुचंती ना, ये बाह्य रूप गोटे
परसेंट जदि हुए आपण के भितरे ताकू नहीं की जो सृष्टि करूचंती सृजनशीलता ताकू नहीं कि मोठू शुणिला परे आपण अंतर भीतर को नेले ताकू नहीं कि जो विशाल काय भाव सृजनशीलता आनिले आपण भितरे ताहा ही आपणकर परम दर्शन ताहा ही आपणकर आध्यात्मिकता मन रख बाहर पुस्तक साधक मान पाखु भल गुरु मान पाखु समस्त पाखु आम 1% निते 1% 99% आमको ही क्रिएट करने को पड़े जो मैंने केवल नियंती 1% क्रिएट करते नहीं से एक नहीं 1% सरी सरी जाए शून्य ही जाए बुझीपार तो निज भितर जो सृजनशीलता आम जो दर्शन को एवं मु कहूँ गोटे कथा निजक देखु निजर पावर को निज शक्ति को देखु यही समस्त प्राणी के शक्ति आम भीतर अच्छी ताकू नहीं कि जिते बेले ताकू आपण क्रिएट करने आरंभ करेंगे निज भितर ना जो दर्शन टी निज आसब निजर फिलिंग्स से दर्शन भैल्यू कहीं दे पारे ना ये संसार जिते गीता भगवत भागवत आप बड़ बड़ साधक जो माने कही क्या अवमानना करूना से सब अधिक शक्तिशाली आप निजस्व दर्शन कारण अन्य मान दर्शन को कौटी ना कौटी आप मन आत्मा हृदय ग्रहण करें ना समुदाय भाव निजर गोटे निजस्व मत कौटी ना कौटी पुणी बाहरी आसे बुझीपार ना मुझे कहूँ एकदम गभीर भीतर को जो प्रवेश करेंगे मो कथा को बुझीपारे तेणु ये संसार प्रत्येक मनीष आम गोटे गोटे दार्शनिक आपण समस्त जगह दार्शनिक कहूना समस्त गोटे गोटे थर्ड से अनम्यूट करके कहीदेवे कहारी थट्स कहारी थट सहित मिसब ना समस्त भर गोटे गोटे सृजनशीलता बाहरी आसो एवं मोठू शुणिला बेले समस्ते कौन समान भावना कर कोटी कोटी लोक भी शुणे समस्ते नुआ नुआ थट्स पार नुआ नुआ थट्स को सृजनशीलता भर को तफात से टिके 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 सामयिक तफात भी गोटे बहुत बड़ा तफात तेणु असल दर्शन असल आध्यात्मिकता होठी निज भीतर शुद्ध दर्शन निज भीतर शुद्ध मन ही आप जदि मन जदि शुद्ध हुए संसार लागे धाम धाम मान पुण्य धाम प्रेम और करुणा भरिले मनीष ही जाए दिव्य नाम निजर कथा ही मुझे कहूँ पद मान भीतर केवल निजर कथा आम भीतर जदि मनटा शुद्ध हुए ताहले संसार आमको एक पुण्य धाम सदृश मन हम जानते ना गोटे पदटे मन धाता हेले बाम धूली मेरु सम कषण दी संसारी पिता माता जम पराय हुंती रज्जु सर्प होई पारे शुणी धाता हेले बाम धाता कहले विधाता विधाता किए आमर चेतना निज भीतर चेतना आम निज भीतर थिबा चेतनाटी जेते बेले बाम ही जीव नेगेटिव ही जीव बाम डाहाण नेगेटिव पॉजिटिव भाव जिते नेगेटिव हो नकारात्मक हो धाता हेले बाम चेतना जिते नकारात्मक बाह्य स्तर बुझंतु ना निज निज शरीर भीतर बुझंतु धूली मेरु सम कषण दिए संसारी ये धूली टिके भी बड़ बड़ पहाड़ भाया कष्ट आपण को देव जदि आपण धाता को बाम कर दियंती लोक मैंने बुझे भाग्य खराब है या भाग्य बाहर किसी कोठी भाग्य बाहर बिक्री हो ना कि आप किले 2 किलो भाग्य किणवे डियर फ्रेंड्स भाग्यर सृष्टिकर्ता भाग्य रचयिता भाग्यर निर्माता आप निजे निजे ही बाहर अद्दो ना तो निजे ही धाता निजर चेतना को शक्तिशाली करने कहुई पदर
ए बाह्य जगत रे लोक भाग्य को भाविकी हाँ मो भाग्य तो या अच्छी बोली को स्वीकार कर स्वीकार कथा आदौ कह जाए आपण भाग्य को परिवर्तन कर दाता हेले बाम धूली मेरु सम मेरु मान पहाड़ पर्वत कषण दिए संसारी पिता माता जम पराई हंती बापा माँ भी आप जम भाया लगे आप नेगेटिव हेले मो पिता बापा एमती कहते माता एमती कहते कौन भल कि आज्ञा कौ पिता माता एमती कहे जम भाया आप चिंता कर पिता माता कौन से चिंता कर धाता आप बाम हिसाब धाता भाग्य भाग्य विधाता आप चेतना नकारात्मक नकारात्मक चेतना पितामाता भी जम भाया लगे शत्रु भाया लगे पितामाता जम पराये हुंती रज्जु सर्प हो पारे रज्जु माने दौड़ी दौड़ीटे भी साप हो दौड़ीटे भी अरे बाप दौड़ीटे अंधारे देखीदेले चमकी साप टे माड़देली बोली चमकी हार्ट फेल होना भावुं कथा सत्यता डियर फ्रेंड्स मु वृथा कथा कहूना रज्जुटे पर देखिए से साप ही नपटे केते कौन असुविधा मेडिकल बही रज्जु मध्य सर्प जदि धाता बाम हो धाता को बाम करंतु नहीं धाता को चेतना को नकारात्मक करंतु नहीं चेतना को जिते बड़े आप सकारात्मक करेंगे दिव्य शक्ति सहित संपर्क संजोग करेंगे से आप उचित दर्शन सहित आध्यात्मिकता रास्ता जाऊँ ऑटोमेटिक जाना दरकार नहीं कि आप आध्यात्मिक रास्ता जाऊँ जाना दर्शन दरकार नहीं कि आप दर्शन तत्व को दौरान आप जन दार्शनिक जाना दरकार नहीं मात्र आप अजाणत आप आध्यात्मिकतार रास्ता सुंदर स्वच्छ दर्शन सहित गमन ओके निज को खोजिले मिले ईश्वर दूरे नुहे से कहीं हृदयर शांत आकाश हृदयर शांत आकाश आलोक अच्छी रही बाहरे खोजिले आम ईश्वर को पाइबा ना दूरे नुहे से कहीं कौन सी दूर रे नाहंती ईश्वर हृदयर शांत आकाश जदि खोजा यही बाह्य आकाश बहुत ऊपर को भी बुली बुली जी आप केते केते रॉकेट भी नेबे ईश्वर को खोजा थरे यात्रा करेंगे कोठी पाइबे किंतु जिते बड़े निज हृदयर आकाश रे खोजा आरंभ करेंगे सेठी ही आम ईश्वर को पाइबा तेणु ही सुधी सज्जन मंडली दुख सुख दुही गुरु मूर जीवनर गुप्त ज्ञान जी बुझिला ही रहस्य से पाइला मुख्य प्रमाण भल लगुच पद बना कुआड़ कुआड़ आड़ी आप भावी पारे ना तो मुझे खोजे दिव्य दृष्ट पद सुख दुख दुही गुरु मोर आम गुरु की भागवत अवधूत एक सुंदर चरित्र जी 24 गुरु कर अवधूत 24 गुरु कपत गुरु मोर कपत पक्षी गुरु मोर शोई मन मोहर निज गुरु उद्धव के प्रचार उद्धव अवधूत सेमिति आपणकर सुख एवं दुख हेउची गुरु सुख ठू कौन पाँच दुख बेले कौन पाँच जदि आप गुरु ज्ञान करे ना ताहेले पथ परिष्कार जीवन गुप्त ज्ञान आम जीवन गुप्त ज्ञान होता निजर सुख दुख को गुरु मिलवा अर्थात निजर एक्सपीरियंस को गुरु कर शिखंतु एक्सपीरियंस आपणकर फेलियर इज नॉट ए फेलियर आप असफलता के असफलता ही न पारे ताहा सफलता पाई आपण एक उचित शिक्षा ये कथा को जी जानती से माने आग को बढ़ाती कारण असफलता अटकाई पारे ना असफलता भितर से माने विफलता भितर असफलता भितर से माने सफलतार स्वाद चाकती सफलतार फर्मुला पाती आउ गोटे स्टेप आग को बढ़ाती
नु नेक्स्ट वन एनु नु कले नेक्स्ट वन नहीं नुह नेक्स्ट वन आग को जानतु मिल भिकारीटे भी आसूची भिक मागुची बुली बुली भिका दिन तो ना मो पाखे ना निराशिक पड़ोचे ना भिका मिलला चाल पलैबा से नूर अर्थ बुझुची नेक्स्ट वन आउ जन को मागे नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन किसी जन तो यस करेंगे ना करेंगे कर ना संसार आम से नेक्स्ट वन को खोजार अच्छे दुख आसले या परे कौन अच्छे 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 सबु दुख सबु अंधकार भितरे एक दिव्य आलोक एवं दिव्य सुख लुचिकी थाए से पर्यंत आम पहुंची पारे परस्त परे परस्त अंधार को एड़े आम दिव्य आलोक को पाई ओके चलते बर्तमान आम जीवा पुणी पंच सखा निकट को फेरी जावा बाकी आमे लक्ष्मी पुराण जगमोहन रामायण बा गुप्त गीता भितर भी बलराम जगन्नाथ बलराम दासंकर आध्यात्मिकतार दर्शन कथा पाती जहाँ लक्ष्मी पुराण उदाहरण मुझे आ रामायण उदाहरण देली कि परस्पर भितर स्नेह सदिच्छा भल पाइबा मानविकता समानता ये सबू गुण आम पंच सखा मान पाऊ जो माने कि आध्यात्मिकतार शीर्षतम स्थान को लेखा गुड़ाक माने गोटे गोटे जुग जयी लेखा ये लेखा माने मनुष्य जीवन को मनुष्य समाज को परिवर्तन कर ना नहीं परिवर्तन कर आपड़ शुणी अभिमन्यु सामंत सिंह जीवन शैली अभिमन्यु सामंत सिंह कृष्ण लीला कृष्ण राधा को खाली प्रेम 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 एकदम गभीर भाव में लिखिं जीवन शैली जानी सुंदर स्त्री थी सुंदर स्त्री थी बहुत भल पाती स्त्री थट्टा तमाशा बुझती जहाँ कहे से सत ही बुझती मजा मजलिस बुझती ना कही स्टोरी कही कहनी तो शुणी दिखाँ संक्षिप्त दिने अभिमन्यु सामंत सिंहार कौन कले ना से गले जंगल को जाते जी थे सहयोगी कौन कले दिन मजा करवा माँ सांताणी आज मजा करे से थट्टा तमाशा बुझते तुम जाओ गोटे मजा कर कौन कर अलता फलता बोली देले गोटे कपड़े आउ धोती देदेले तुम जाओ बाघ नहीं गला कह सांताणी आओ कौन प्रभाव पड़ो देखा जब संक्षिप्त कहीदे समय दृष्टि को सहयोगी आसिले आते अभिमन्यु सामंत सिंगार बाहर को जाइए ये दांड कड़े जो कबाट अच्छे कबाट कड़े एमती कबाट पटे आउजी कई कांथरे कबाट आउजी कर शांत अपेक्षा कर स्वामी को केतला आस बहुत भल पा एकदम इनोसेंट माने स्त्री किसी भल थट्टा तमाशा बुझती ना सब सत मणती जहाँ कहले मजार कहले से जो आसिक कहला कि आउ सांताणी शांति को बाघ नहीं गला बोली कांदी कांदी कहला अभिनय कर ये सेमती ही अच्छा कौन सी रिएक्शन ना सी एथर गला पलैला कहला शांत शांत जानीदे शांताणी कौन सी रिएक्शन ना किसी प्रतिक्रिया ना कि ना मन दुख ना कौन तुम भावुव आप भावुव मन दुख करेंगे कि ना से पाखे जाकि लुचि अच्छा हौ चल ताहले ठीक अच्छे आसिले कौन सी प्रतिक्रिया नहीं सेमती छिड़ा सेमती आउजी कि अच्छा आसिकी अभिमन्यु सामंत सिंह से आज पाखक अरे कौन जानीदेल ना आम मजा करवाटा बोली कहले से सेमती ही प्रतिक्रिया शून्य भाव में हल देला बेलू से प्राणवायु चली शुणु ये सत्य घटना अभिमन्यु सामंत सिंह का वाइफ को प्राणवायु से आउजी ही प्राणवायु चली केते भल पाती चिंता कर केते भल से पाती स्वामी मृत्युर खबर मिछर भी शुणु शुणु प्राणवायु चलीगला को लेवल रे आमे प्रेम को नवा चिंता करंतु को लेवल पर्यंत जाई पारे थरे कही थी कथा यस तेणु ये सब कौन ये चेतनार कथा चेतना आध्यात्मिकतार एकदम गूढ़ रहस्य भितर आम जाऊँच बलराम दास भक्ति और समाजर समता को
देवा ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଆମେ ସମତା ଏବଂ ନାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସମଭାବାପନ୍ନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମଭାବାପନ୍ନ। ତେଣୁ ଏ କଥା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଲେ କୌଣସି କଲେଜକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ପଚାରେ, ଏ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭାଗବତ ପଢିଛ? ପ୍ରାୟ ମନା କରନ୍ତି। ଆଜିକା ପିଲାମାନେ ପଢିନା, ପ୍ରାୟ ମନା କରନ୍ତି। ଓକେ, ଶୁଣିଛ କିଛି ପଦ? ନାମ ପଦ ବି ଶୁଣି ନାଉ। କାଁ ଭାଁ ଜଣେ ଦି ଜଣ କୌଣସି କାହା ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ୟେସ୍। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତମକୁ ଭାଗବତ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଭାଗବତ ଟୋକରେ ତୁଳସୀ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଭାଗବତ ବହି ପଢି ନଥିବେ ବରଂ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପୁରୀ ପୁରୀ। ଯୋଉ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଚେତନାର ଶକ୍ତିକୁ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵକୁ, ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଠୁ ଉପଦେଶ ନେବା ବିନିମୟରେ ସେଇ ପୁସ୍ତକଟି ଆମ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଇଗଲା ଭାଗବତ। ନା ନାଇଁ? ତ ଚେତନା କେତେ ତା ଭିତରେ ଚେତନା ରହିଛି। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଭାଗବତ ରଚନା ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନଦିଆରୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନା କରୁଥିଲେ 1510 ନା 1600 କେତେ, 1510 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ସେତେବେଳେ ରାଜବାଟୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବସିବେ ଏବଂ କବି ତାଙ୍କର ପଦମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ସମୀକ୍ଷା, ଆଜିକାଲି ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କବି ଅଧିକ, ଶ୍ରୋତା ବା ପାଠକ କମ। ଆଜିକାଲି କବି ଲେଖକ ଅଧିକ, ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା କମ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କବି ଏକଦମ କମ, ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ, ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି। ଏବଂ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଣି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଓକେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ତତ୍ଵକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତେ, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ତତ୍ଵ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ଵ। ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟ। ବାହ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଖାଲି ଚାଲିଛି, ଗପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ, କଳ୍ପାଂଶ ମାନେ, ଏବଂ ଭିତରେ କେବଳ ଆମର ପିଣ୍ଡର କଥା, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ସେଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରେ ଭାବ ଜାଣ ଗରି କରି ଗମନ, ବରି ବ୍ରହ୍ମ ବସେ ତରେ ହେତୁର ଘର, ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବହି ଯାଉଅଛି ସୁଧା, କେଡ଼େ ମଧୁର। ଭାରେ ଭାବ ଜାଣ, ଭାବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବ, ଭାବନା, ସମ୍ପର୍କ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ, ତାହା ଆପଣ ଭାଗବତରେ ପାଇବେ। ଭାଗ ଗରେ କରେ ଗମନ, କିଏ ଗମନ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ଆମର ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରନ୍ତି।
ତାହା ଗମନ କରନ୍ତୁ ଲେଖୁଛି ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରିବା करे करे गम बरे ब्रह्म बसे माने कोठी पिता मातांक मिलन रे आमे जेमिति जन्म नियंती ब्रह्म बसंती पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शंकराचार्य लिखिछन पुनर्बार जन्म नवा मरिबा जन्म नवा मरिबा एक सर्किल जन्म मृत्युर एक सर्किल भितर आमे घुरुचंती सेमिति आमे जन्म नियंती जो जीव जगत आत्मा जिते बड़े आसिकरी शरीर भीतर प्रवेश करते ताहला ब्रह्म बसे भाग बगर तो तरे हेतुर घर कहले परमात्मा घर ब्रह्मलोक निवास स्थल जोठी मनीष समस्त पुण्यतार समस्त पाप पंकिल एमती नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाए मनीषर 100% सकारात्मक पुण्य फल जिते बड़े मनीष जाए से अमोक्ष हो जाए निर्वाण पाई जाए से से ब्रह्मलोक स्थान पाए ब्रह्म सहित से संश्लिष्ट हो जाए कह जाए तो डिफरेंट डिफरेंट भगवान मान को आम चिंता करते कह जाए विष्णु पादरे लगी जाए छोट गोटे तिल चिन्ह यही शरीर चर्म रे गोटे लोमक पर लगी जाए लीन हो जाते कहते एमती आमे हूँ ब्रह्मलोक हेतु रखर भागवत चारि अक्षर बही जाऊँगी सुखा बड़वत किति तो भागवत कार जगन्नाथ दास अति सुंदर सुंदर गप माध्यम पूरा फेरका बण है परस्पर सहित जदुवंश ब्राह्मण मान अभिशाप जदुवंश नष्ट है लोह मुसल भर्ती कर ब्राह्मण मान परीक्षा करागला ये गर्भ भितर कौन अच्छी से कहले जहाँ भी अच्छी से तुम वंश निपात करी अनुसार बुझीपार से लोह को भीम को कहीकि पूरा छोट करागला तथा भीम पाले पानी भितर छाड़देले माछ भक्षण कला माछ धीवर जाल लगिला माछ धीवर जाल काटिक गोटे व्याध पुणी नेला ताकू पुणी गोटे सरर मुन तैयारी कला से सर मुन पुणी श्रीकृष्ण पाद को एक सुंदर हरिणर कान भाविक व्याध कृष्ण पाद को सरविंध कला इति कथा भितरे भागवतर गल्प भितरे आमे अंतस्थल भितर को जदि प्रवेश करिबा निज कथा जान आत्मज्ञान हृदय कथा पिंडर कथा ही जाना समय स्वल्पता दृष्टिकोण बाकी कवि मान संक्षिप्त रेखाटी कहीदे अच्युतानंद दास प्रसिद्ध सृजन भितर आप पाइबे शून्य संहिता एकदम बहुत भल लेखा मालिका पाइबे अच्युत मालिका कहते अच्युतानंद मालिका सत हूँ हम सया हम कहते ना अच्युतानंद मालिका आपने शुणी थे भी आध्यात्मिकतार एक सुंदर प्रसिद्ध ग्रंथ एवं गुरु भक्ति गीता गुरु भक्ति किभली गीता ज्ञान दे पारे पड़े गुरु भक्ति रे आपण समग्र गीतार ज्ञान को केमी अंतस्थ कर कथा आप गुरु भक्ति गीतार पाइब अच्युतानंद दास आध्यात्मिक दार्शनिकता और भविष्यत बाणी प्रसिद्ध कौन कौन आग को हम से कहते अच्युत मालिका आग को कौन हम ये भविष्यत बाणी से प्रसिद्धि अर्जन कर आम मन भितर ये संसार समस्त ज्ञान रही सी अतीत हो वर्तमान हो भविष्य आम मनर अवचेतन मन पाखे समस्त ज्ञान ज्ञान भंडार से एक कथा से बाहर जी से कथा को बाहर करके अवचेतन मनरू बाहर को लोकलोचन को आनीपारे से जड़े प्रसिद्धि अर्जन करे कौन क्षेत्र में सेपरी जशवंत दास को जीवा आलोचना करवा प्रसिद्ध सृजन भितर आप पाइबे प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता पाइबे शिव स्वरादय पाइबे शिव स्वरादय ये जशवंत दास बहुत बढ़िया लेखा आप भी पाइबे
ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ କେହି କେହି କି ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପିତାମାତା ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରନ୍ତି। ବାବା ହେଇଯିବ। ଭଜୁ କିନା ରାମ ନାମରେ ତୁମର ଜପୁ କିନା ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିରେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରି ବାନ୍ଧି ନବ କାଳଜମ। ସେଇ କାଳଜମ ମହାଦାରୁଣରେ ନ ଜାଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବାଛି ନବ କଂସା ରଖିବ ଫାସିଲାରେ ଦବଟି ଦାରୁଣ। यार पढ़नी बोली कह टीका गोविंद चंद्रन को एटा दिया जाइए तांकर गुरु हाड़ीपा मृत्युंजय ताके आमे पाइबा जो सब दासंकर एवं पंचसखार कनिष्ठ साधक होचंती शिशु अनंत अनंत दास। यही आश्रम माने मध्य एथिरे आपण पाइबे अच्युतानंद आश्रम अनंत आश्रम गुड़े पाइबे आपण अच्छी हम ओडिशा रे विभिन्न जगह जो बोले तांकर चर्चा तांकर चेतना को ସେମାନେ प्रचार प्रसार କରୁଛନ୍ତି। प्रसिद्धि सृजन है हेतु उदय भागवत अनंत दास प्रसिद्ध है हेतु उदय भागवत। हेतु उदय भागवत रे आपणकर हेतु हेतु बोले कहली ब्रह्म ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक उदय हम आपण भितर से भागवत पढ़ी अर्थात निज पिंड भितर ब्रह्मांड को पाइबार कला पाइबार ऊर्जा आपण हेतु उदय भागवत रे पाइबे। आपण हेतु उदय हम एवं 84 आज्ञा बोली एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ तांकर अच्युतानंद 84 आज्ञा जो थे अनंत दास भक्ति और धार्मिक नीति विषय एमती ग्रंथ रचना करी आध्यात्मिकता उपरे आमर दर्शन को थोड़ी मोटामोटी भाव में जो 5टी पॉइंट मु कहली आध्यात्मिकतार से 5टी पॉइंट रे एई पंच सखा लेखनी को सुंदर भाव रूपायित करिसंती। आत्मज्ञान धर्म नीति करुणा और प्रेम मन नियंत्रण एवं एकत्व धारणा यही 5टी आध्यात्मिकतार पॉइंट भितर पंचसखा लेखनी चालना करिसंती। सुजोग मिले आमे आहुरी अनेक कवि लेखक साधक अच्छी आम ओडिया रे मध्य जो मैंने आध्यात्मिकता उपर लेखनी चालना कर स्पर्श कर छुई पार अनुभव कर आम भीतर आधार आकार नहीं पार। आज ये आशा करुच्ची विषयटी भल लगी मनमुग्धकर तेणु मुख्य उद्देश्य है चेतना को उद्रेक करवा आम भीतर जो चेतना अच्छी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करी आम दिव्यत्व को आम भीतर केमिति सृष्टि करवा दिव्य आलोक द्वारा आम भीतर अंधकार मिथ्या हिंसा कपटता ईर्षा घृणा ये सबू किसी दूर करिकी आम समस्त को भल पाइबा प्रेम करवा समस्त को सम्मान दवा समता भावपन्न करवा द्वारा एक सुस्थ समाज आम गठन कर दिव्य समाज गठन कर दिव्य संयोग उद्देश्य है एक दिव्य समाज गठन करना समस्त को दिव्य प्रणाम। चलतु आखि बंद कर दिंतु समस्त शांति पाठ करवा एवं दिव्य संयोग श्रेणी को शेष परिचय करवा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति शांति शांति। समस्त को दिव्य प्रणाम दिव्य प्रणाम दिव्य प्रणाम। समस्त को दिव्य प्रणाम करी समस्त मंगल कामना करी दिव्य संयोग श्रेणी को ये समाप्ति कर दिव्य प्रणाम। ओम सत।